Moving on to part 3, landmark Supreme Court and High Court judgments on workplace sexual harassment law in India. Our speaker will highlight key judgments shaping the legal landscape. Let's dive in. Time is valuable and we are glad you are part of this crucial session. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Shruti. Uh, Last part now. पार्ट 3 बहुत सारे केस लॉज दे रहा हूं मैं अभी आपको ताकि लीगल प्रैक्टिस में काम आए आपको पॉश केस लॉज कॉम्पेंडियम landmark Supreme Court and High Court judgments on workplace sexual harassment law in India. Introduction. The jurisprudence related to workplace sexual harassment in India has evolved significantly through judicial pronouncement, particularly after the landmark judgment in Vishaka versus State of Rajasthan, citation 1997, 6 SCC 241. The judiciary has consistently emphasized gender equity, dignity at workplace, safe working environment, employer accountability. The compendium provides important judgments under Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, Vishaka Guidelines, Constitutional Protection under Articles 14, 15, 19 and 21. So first case laws जो ऑलरेडी रिपीट हुआ है तीनों में लेकिन वापस मैं रिपीट कर रहा हूं 1 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान citation 1997 6 SAC 241 court Supreme Court of India ratio sexual harassment violates article 14 15 19 1G and 21 sexual Supreme Court framed Vishaka guidelines in absence of legislation. Employers are obligated to create safe working environments. Significance foundation of posh jurisprudence in India. 2. Apparel Export Promotional Council versus A.K. Chopra. Citation 1991, 1999, 1 SCC 759, Court Supreme Court. Ratio physical contact is not necessary to establish sexual harassment. Attempt or unwelcome conduct affecting dignity is sufficient. याद रखना रेप अलग है और ये अलग है बराबर है तो हट टच भी नहीं किया किसी लेडी को लेकिन शब्द से या हाव भाव से या जेस्चर से अगर उसको आप हैरेश करते हैं या कंटिन्यू गेजिंग 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 करते हैं तो उसको इरिटेट होता है और वो बोलती है आपको कि भाई ऐसे मत देखो मेरे तरफ आप आपका काम करो मेरा काम करने दो उसके बाद भी अगर बार बार बोलने के बाद भी आप सुधरते नहीं हैं तो फिर ये सब लिटिगेशन को फेस करना है significance of this case law expanded scope of workplace harassment 3 Meda Kotwalele versus Union of India citation 2013 1 SCC 297 Court Supreme Court ratio Vishaka guidelines are enforceable law court can intervene for non-compliance significance strengthen implementation obligations 4 Aurelio Fernandez versus State of Goa, citation 2023 SCC online SC 621 Court Supreme Court ratio non-constitution of internal committees is a serious violation. Governments and institutions must ensure strict post compliance. Significance major implementation focused judgment. 5 Dr. Punita K. Sodhi versus Union of India. Citation 2010 SCC online Del 3496 Court Delhi High Court. Ratio delay in complaint does not automatically discredit victim. Workplace harassment often involves psychological barriers. अगर किसी लेडी को डिले भी होता है तो दैट इज नॉट डिस्क्रिएटिंग विक्टिम वो विक्टिम को डिस्क्रिएट नहीं कर सकता
सिग्निफिकेंस सेंसिटिव अप्रोच टुवर्ड्स डिलेड कंप्लेंट, डिले कंप्लेंट को ऊपर भी कोर्ट ने सेंसिटिव अप्रोच दिखाना चाहिए। 6 या कोर्ट ने दिखाने के पहले मेनली आईसी, इंटरनल कमेटी या सोशल कमेटी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंडर होती है, तो इसने डिले होता है तो भी वो कंप्लेंट देखना चाहिए कि भाई जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, तो डिले भी कंट्रोल करना चाहिए। संदीप खुराना वर्सेस दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, citation 2010 SCC online Del 2713, quote Delhi High Court. Ratio: principles of natural justice must be followed in post inquiries. Significance: balance procedural fairness with victim protection. 7. Global Health Private Limited versus Local Complaints Committee. Citation 2021 SCC online Del 4899, Court Delhi High Court. Ratio: internal committee functions as a quasi judiciary authority. इंटरनल कमिटी जो रहती है ना, उसका फंक्शन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जैसा रहता है, जैसे एनसीएलटी काम करती है या ट्राइब्यूनल काम करते हैं, इसको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, वैसे ही इंटरनल कमेटी काम करती है। इंक्वायरी proceedings must be fair and reasoned. Significance: clarified nature of IC proceedings. 8. Usha Kejriwal versus Union of India. Citation 2023 SCC online Del 1542. Court Delhi High Court. Ratio: confidentiality under section 16 is mandatory. Significance: protection of complaints identify emphasized. 9. Tejpur University versus Aparna Datta. Citation 2015 SSC online GAU 134. Court Guwahati High Court. Ratio: employer must ensure prompt constitution of complaints committee. Significance: administrative accountability recognized. 10. Manisha Sharma versus Union of India. Citation 2024 SCC online Del Court Delhi High Court. Ratio: court may interfere where inquiry violates natural justice. Significance: reinforce procedural safeguards. 11. Pawan Kumar versus Union of India. Citation 2023 SCC online Del 3120. Court Delhi High Court. Ratio: mere acquittal in criminal case does not invalidate departmental past findings. Significant: different standard of proof recognized. 12. Bibha Pandey versus Delhi State Legal Services Authority. Citation 2018 SCC online Del 12528, Court Delhi High Court. Ratio: workplace safety is linked with dignity under Article 21. Significance: constitutional dimensional reiterated. Reiterated means say again and again, बार बार पुनरुच्चार करना. That is called reiterated. 13. Nisha Priya Bhatia versus Union of India. Citation 2020 13 SCC 56, Court Supreme Court. Ratio: gender discrimination and hostile work environment violates constitutional protection. Significance: broadened gender justice jurisprudence. 14. Ruchika Singh Chabra versus Air France India. Citation 2018 SCC online Delhi 9346, Court Delhi High Court. Ratio: inquiry findings must be based on evidence and reasoning. Significance: prevented arbitrary conclusions. 15. मिसिस एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये मिसिस एक्स क्या प्रकार है, तो ये कॉन्फिडेंशियली के लिए अभी कुछ साल पहले से सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है कि जहाँ पे श्री की आइडेंटिटी ओपन नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे श्री का नाम भी नहीं आना चाहिए केस में. तो मिस एक्स, मिसिस एक्स, खाली एक्स, ऐसा ही वर्सेस फिर जो कोई रहेगा यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह जो भी है.
जनरली क्रिमिनल मॅटरमध्ये स्टेट ही ये रहता है, लटता है, और विक्टिम जो रहता है वो विक्टिम उसमें पार्टी नहीं रहता है, लेकिन अपीलेट कोर्ट में विक्टिम केस फाइल कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ऐसा है। साइटेशन 2022 SEC ऑनलाइन डेल 1454, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, रेशो कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सटेंड टू ऑनलाइन पब्लिकेशन एंड मीडिया रिपोर्टिंग, सिग्निफिकेंस स्ट्रेंथ एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो जब आपका मैटर चालू है, एक सब चालू है, तो इसका न्यूज़पेपर में इधर उधर किधर भी पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइंस ये केस लॉज ने दिए है। कौन सा केस लॉज? मिसेस एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। 16 शांता कुमार वर्सेस CSIR, citation 2018 SEC ऑनलाइन डेल 11322, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, रेशो इंटरनल कमिटी recommendations must be considered seriously by employer, significance employer cannot casually ignore findings। 17 थोड़ा रहा अभी, जस्ट बियर विथ अस, बाद में फिर हम कमेंट्स पढ़ेंगे आपके आपके नाम के साथ। 17 विद्या अखवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, citation 2021 SEC ऑनलाइन बॉम्बे BOM बॉम्ब 325, कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट, रेशो fair hearing to respondent is equally essential, significance balance right approach। 18 Hira Singh versus Air India Limited, citation 2020 SEC ऑनलाइन BOM बॉम्बे 421, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। रेशो टेक्निकल डिफेक्ट्स शुड नॉट डिफेक्ट सब्सटेंशिव जस्टिस इन पोस्ट कंप्लेंट। पोस्ट कंप्लेंट करते समय कोई टेक्निकल डिफेक्ट है तो भी उसको नजरअंदाज करके मेन जस्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो वर्डिंग इज लाइक दैट, टेक्निकल डिफेक्ट शुड नॉट डिफिट सब्सटेंशिव जस्टिस इन पोस्ट कंप्लेंट्स, सिग्निफिकेंस सब्सटेंस ओवर प्रोसीजरल टेक्निकलिटी, प्रोसीजर टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ओवरकम किया है ये लॉ, केस लॉ के कारण। 19 फारूकी वर्सेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, citation 2018 SSC ऑनलाइन डेल 7422, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, रेशो universities must maintain robust anti-harassment mechanism, significance applicability in educational institution emphasized। 20 Anita Sharma versus Union of India, citation 2022 SCC online Del 982, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, रेशो retaliatory action against complainant amounts to victimization, significance protection against retaliation enforced। Key legal principle emerging from past jurisprudence, टू कॉलम्स आर देयर, प्रिंसिपल एंड जुडिशियल पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक से सुनिए। सेफ वर्क प्लेस, इसका जुडिशियल पोजीशन है फंडामेंटल राइट, डिजिटल डिग्निटी ऑफ वुमेन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, SC मैंडेटरी, इंटरनल कमिटी मैंडेटरी, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायर्ड, confidentiality essential protection, natural justice mandatory in inquiry, standard of proof preponderance of probabilities, and retailization prohibited, strongly discouraged। Important constitutional provision evolve: Article 14 equality, Article 15 non-discrimination, Article 19 1G right to profession, and Article 21 dignity and life। Important sections of POSH Act: Section 2N sexual harassment definition, Section 4 internal committee, Section 9 complaint procedure, Section 11 inquiry, Section 12 interim relief, and Section 14 false complaint, Section 16 confidentiality, and Section 19 employer's duty। Conclusion: India's courts have played a transformative role in ensuring safe workplace, gender equality, institutional accountability,
beginning from Vishaka versus State of Rajasthan to Arolino Fernandez versus State of Goa. The judiciary has consistently reinforced that workplace dignity is a constitutional imperative. Yes, दोस्तों, आज का ये लंबा वेबिनार यहाँ पे खत्म हो रहा है. अभी मैं थोड़ा सा, एज आई प्रॉमिस, मैं चैट में जाके थोड़े से चैट पढ़ता हूँ. जो रिमार्क है, किसी के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को भी आंसर करूंगा. भाग्यश्री महाले, सर आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन मुंबई. जरूर, आप श्रुति को या मनोज को, किसी को कांटेक्ट करो और आपका नाम एड्रेस सब भेजो. हम आपका नाम पैनल पे ले लेंगे. बी अ पार्ट ऑफ दिस. और नानी पालकी वाला का भी काम कीजिए. और अगर आप लीगल प्रैक्टिस करते हैं तो लीगल प्रैक्टिस भी कीजिए. हमारी ब्रांच ओपन हो रही है इसकी, JSS लीगल, सुप्रीम लीगल LLP की. मेरा ऑलरेडी ऑफिस है परेल में, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रोड के ऊपर. तो प्रीमियम थिएटर के बिल्डिंग में है, 4th फ्लोर पे. तो वो ऑफिस अभी हमने किराए से दिया हुआ है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट से. तो लेकिन अभी किराएदार को नोटिस दिया है, अभी 2 महीने में वो खाली हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट आवर ओन ऑफिस देयर. एंड आवर ऑफिस विल फोकस ऑन collection of the cases from Bombay for Supreme Court, number one. Number two, we will handle High Court of Bombay's cases also with a expert panel. मैं खुद नहीं आऊंगा बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन एक्सपर्ट पैनल रहेगा. लेकिन हमारे देखरेख में हर चीज होगी. हम हाई कोर्ट से ही अगर वो केस को कंट्रोल में लेता है तो सुप्रीम कोर्ट तक हम बहुत अच्छा उसको सेट कर पाते हैं. मोस्टली हाई कोर्ट से ही हम आपके फेवर में कर देंगे. लेकिन अगर बाई चांस कुछ होता है तो भी हम, हमारे हाथ में रहेगा, तो हम हमारे जैसा चाहिए वैसा सेप उसको दे सकते हैं. और जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, वो अपीलेट ट्राइब्यूनल की भी प्रैक्टिस जो है वो बॉम्बे से होगी. तो इसके लिए हमारा ऑफिस भी चालू हो रहा है. और नानी पालकी वाला का भी ब्रांच आप लोग लो तो बॉम्बे से हमारे ऑफिस से सब सपोर्ट मिलेगा. और आप ये फिर आगे चल के बॉम्बे के हर उपनगर में भी हम अलग अलग शाखाएं इसकी ओपन करेंगे. पूरे भारत भर में अलग अलग शाखाएं ओपन करेंगे. हमको वुमन की रक्षा है, बच्चों की रक्षा है, गवर्नमेंट के आने वाले सब फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाना है. और ये करना है. और मेनली गवर्नमेंट और समाज इसमें का दुआ बनना है. हमको झगड़ा नहीं करना है किसी से. गवर्नमेंट को उनकी योजनाएं इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको हेल्प करना है, ये करना है. MLA MP हैं, अच्छा काम करते तो उनको ग्रीट करना है, गलत काम करते तो उनको समझ देना है. ये सब भूमिका हमारी है. वी आर एजुकेटेड पीपल. और हमारे काम में पार्टिसिपेट होने के लिए आपको वकील रहना जरूरी नहीं है. आपको पढ़ा लिखा रहना भी जरूरी नहीं है. कोई भी हमारे काम में ये आ सकता है. नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब का मेंबर होने के लिए लॉ का नॉलेज रहना जरूरी नहीं है. आप 12वीं है तो भी आ सकते हैं, 10वीं है तो आ सकते हैं, लॉयर है तो वेलकम है, लॉ स्टूडेंट है तो वेलकम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कंडीशन नहीं है वो, क्योंकि हमारा ये सोशल वर्क का पार्ट है. देन देन सोनाली शाह, एडवोकेट सोनाली शाह, आई टू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. सोनाली शाह बोल रही है, एडवोकेट गुजरात हाई कोर्ट. श्योर, आप जरूर आपके डिटेल्स वगैरह श्रुति को भेज दीजिए. और श्रुति, इनके नाम वगैरह आप लिख लीजिए थोड़ा सा. और इनके नंबर को भी देख लीजिए कैसा इनको इकट्ठा करना. अगर आपको पहले कांटेक्ट हुआ है तो आपके पास नंबर होगा, या श्रुति को आप भेज दीजिए इंडिविजुअल नंबर पे. श्रुति स्क्रीन पे जो लॉगिन की है ना, तो उसमें उसका नंबर भी दिखता है, देखो वो नंबर लिख लीजिए, उसको भेज दीजिए. और एकदम इजी, हमारे नंबर ढूंढने के लिए बहुत इजी रहता है. जयप्रकाश सोमानी डाल देंगे ना गूगल पे तो पूरी हमारी कुंडली मिल जाते हैं आपको. GVK Narayana, welcome Narayana ji. Yes, 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 yes. After retirement from bank, you are doing a excellent work. You are attending my each and every one program from Andhra Pradesh. हाँ? और आपका रिमार्क है, सर एक्सेलेंट, वी ज्वाइन हैंड एंड गो अहेड. वेरी गुड, वेरी गुड. Start your branch of Nani Palkiwala National Law Club there. Then, sir, what measures should organization adopt for safety of women working late hours, night shifts और फील्ड असाइनमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पूछा है एडवोकेट अबू
बकर, पटना हाई कोर्ट से है ये। आ, अबू बकर जी, बहुत केयरिंग सवाल है आपका, बहुत केयरिंग सवाल है। एक्चुअली एज पर लॉ वुमन वर्कर को नाइट शिफ्ट उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं दे सकता है। ये हमारे जो नए लेबर कोड आए हैं, जिसके ऊपर मेरे वेबिनार हुए, आप यूट्यूब पे जाके वो वेबिनार दे सकते हैं। तो वुमन वर्कर को नाइट, लेट नाइट आवर्स वगैरह उसके इच्छा के व्यतिरिक्त नहीं दे सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लेट नाइट आवर्स उसने एक्सेप्ट किया, नाइट शिफ्ट एक्सेप्ट किया, तो भी उसकी सेफ्टी का गारंटी एम्प्लॉयर को लेना है। उसके आने जाने की व्यवस्था की सेफ्टी रखनी है। जो ड्राइवर कार होगी वो उसकी ड्राइवर लेडीज ही रहेगी तो ज्यादा बेटर है। अभी अभी लेडी ड्राइवर आए भी हैं काफी जगह पे। अभी मुझे ये 6 सीटर्स वगैरह चलाते लेडी दिखती है, रिक्शा चलाते लेडी दिखती है, कंडक्टर तो लेडी काफी सालों से दिखती है। अभी कुछ दिन के बाद बसेस की ड्राइवर भी लेडी दिखेगी। उस दिन मैं इंडिगो से फ्लाइट से आया था पुणे से, तो उसकी पायलट लेडी ही थी। और एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे रात, वहां से 12 बजे से फ्लाइट निकला था, यहाँ पे रात को 2 बजे लैंड करने लगा, लेकिन वातावरण खराब था तो उसने नहीं किया लैंड। फिर वो फ्लाइट लेके भोपाल पहुंचे। भोपाल में हम उतरे, भोपाल में फिर वो इंडिगो वाले ने हमको कुछ खाने के लिए दिया, पेट्रोल वेट्रोल डाला वहाँ पे फ्लाइट में। फिर भोपाल से निकले, फिर वापस दिल्ली आए। फिर सेफ्टी जब मिला, सेफ लैंडिंग प्लेस मिला, तब जाके वो लेडी पायलट ने वो विमान उतारा, सेफली उतारा। कितना केयर किया हमारा। ठीक है, हमारा 2-3 घंटा ज्यादा हुआ, पूरा आधा हिंदुस्तान हम एयर पे रात को घूम रहे थे, लेकिन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितनी लेडी आगे बढ़ी है। क्यों इनको फिर, अगर उनके एम्प्लॉयर हैरेस करेंगे, सिक्योर हैरेस करके अच्छा लगेगा आपको? हम्म। कैबिन क्रू रहते हैं जिसको हम एयर होस्टेस बोलते हैं, एयर होस्ट भी रहते हैं अभी, हवाई सुंदर ही, ऐसे हवाई सुंदर भी रहते हैं अभी। तो इनका सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है सबका। सो ऑलरेडी लॉ में एक कवर किया है, लेकिन इसको स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करना है। कोई जबरदस्ती अगर वुमन को नाइट शिफ्ट देता है तो उसको समझाना है, भाई एज पर लॉ, एज पर दिस सेक्शन यू कैनॉट कंपेल एनी वुमन टू वर्क एट नाइट, ऐसा है। तो उतना तो हमको डिग्निटी रखना होगा वुमन का। भाग्यश्री महाले पूछ रही है, सर आई वुड लाइक टू गिव लेक्चर ऑन दिस सेम सब्जेक्ट इन महाराष्ट्र थ्रू आउट, थ्रू यू, ओके थ्रू यू, मेरे ओर से। अरे जरूर जरूर। भाग्यश्री, मला वाटतं तुम्हाला मराठी येत असेल तर नक्की करू आपण, मी मराठीच आहे। आणि आपण खूप चांगलं करू, आणि आपण काही पॉडकास्ट असे मराठीत घेऊ, व्यवस्थित मराठीत घेऊ, प्रॅक्टिसवरती घेऊ, लॉवरती घेऊ, समाजसेवेवरती घेऊ, समाज सुधारणेवरती घेऊ। 200 वर्षापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले नी जे प्रॉब्लेम फेस केले, त्यातले बरेचसे प्रॉब्लेम 200 वर्षानंतर आजही महाराष्ट्रात आणि आपल्या भारतात आहेत। आपल्याला याच्या सुधारणा करणं गरजेचं है। भाग्यश्री, आप जरूर हमारे श्रुति को कांटेक्ट कीजिए, और श्रुति से मेरा भी नंबर लेके मुझे भी भेजिए। सब लॉयर ने श्रुति से मेरा नंबर लेके मुझे भी भेजना है, सब डिटेल्स आपके। तो श्रुति के थ्रू तो मुझे सिस्टमेटिकली आएगा। वो बहुत फास्ट है काम करने में, और फटाफट 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 वो काम करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा है। देखो ना, देखो, पटना से कोई ये कर रहा है, आंध्र प्रदेश से कोई बोल रहा है मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, गुजरात से कोई बोल रहा है मैं कार्य करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र से कोई बोल रहा है कार्य करना चाहता हूँ। दिल्ली में बैठ के हम कर रहे हैं। दिल्ली वाले और भी आगे आएंगे, गुड़गांव वाले आएंगे, फरीदाबाद वाले आएंगे, गाजियाबाद वाले भी आएंगे, नोएडा वाले भी आएंगे। हाँ, सब कुछ होगा दोस्तों। और खाली कितने लोगों में, जितने भी अभी वेबिनार के लिए आए उतने में लोगों में, लेकिन जैसे जैसे स्प्रेड होगा, ये यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, श्रुति का नंबर मिलेगा, हमारा नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट अस एंड ज्वाइंट हैंड टू हैंड टू दिस नोबल कॉज। और हम आहिस्ता आहिस्ता भारत में तो ये करेंगे ही करेंगे अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता जिस देश में डिग्निटी मेंटेन नहीं होता है उस देश में भी हमें करेंगे दोस्तों, डेफिनेटली करेंगे, अच्छा करेंगे हम ये चीजें। बाद में देखो। थैंक यू भाग्यश्री, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। हाँ। हम्म।
हेटल खेराजानी, हेटल खेराजानी बोल रही है, थैंक यू से थैंक यू सिंसियरली फॉर incredibly knowledgeable session. It was a privilege to learn from you, from your insight. Given how impactful the program was, I would humbly suggest arranging more sessions with पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। यस, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कैसा देना वो थोड़ा सा श्रुति, पूजा, बाकी ये जो टीम है वो डिसाइड करेगी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कैसा देना है। हाँ यार, ये आइडिया अच्छा है। हाँ हेतल, आपका आइडिया अच्छा है। सब पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अगर हम डिजिटल भी दे सकते हैं और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे तो है, लेकिन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने सेशन के शुरुआत में अटेंड भी करना चाहिए, सेशन के एंड तक रुकना चाहिए। ऐसा अगर है तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देने में कोई इशू नहीं है। जरूर हम इसके ऊपर सोचेंगे। श्रुति, नोट डाउन दिस पॉइंट, ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का हेतल का बहुत अच्छे सजेशन है। और इसको हम हमारे रूल्स में जब डालेंगे तब हेतल फॉर्मूला ऐसा ही डालो, हेटल फॉर्मूला ऐसा ही डालो, तो उसके नाम से ही हमको याद रहेगा कि हेटल ने हमको ये सजेशन दिया था और उसके नाम से ही हमने रूल में उसको ऐड किया है। दिस वुड ग्रेटली, उसका ही आगे लिखा है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के बाद, दिस वुड ग्रेटली इनकरेज स्टूडेंट अटेंडेंस एंड प्रोवाइड सिग्निफिकेंस वैल्यू टू आवर प्रोफेशनल सीवीज। हाँ, ये गुड 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 गुड, एज वेल एज प्रिपेयर फॉर आवर लीगल करियर्स। थैंक यू फॉर योर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। सर, कैन यू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द ग्रुप? वो ऑफिशियल 1 और ऑफिशियल 2 ग्रुप के लिंक जो है, जो पोस्ट आते रहता है ना, आपको ये पोस्ट में मिलती है, आप जाइए पोस्ट पे। अगर नहीं मिलते तो श्रुति को कांटेक्ट कीजिए, श्रुति विल शेयर यू द लिंक। बाद में श्रुति ने ही अपना कांटेक्ट नंबर डाल दिया, देखो वो देख लीजिए। श्रुति का कांटेक्ट नंबर है 8969929042। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 8969929042। किसी भी काम के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे लॉ फर्म को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप श्रुति के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मनोज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूजा राय के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रजनीश कुमार के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पीए के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हेटल वापस आगे बोलती है, एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन अ 5 years इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय योर वर्क। It would be a greater honor to contribute to your office. I would like to humbly inquire if there are any upcoming opportunity for hybrid internship. I am eager to provide any necessary research assistance and would appreciate the chance to learn under your esteemed guidance. Yes, हमारे यहाँ पे इंटर और जूनियरशिप के ऑप्शन अपॉर्चुनिटी रहते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड रहते हैं, 5-5 सीटें ही हम लेते हैं। और उसमें कि कुछ हम फिजिकल अटेंडेंस को जिसको आके दिल्ली में करना है उसके लिए भी रहती है, जिसको वर्चुअली करना है उसको भी लिए रहती हैं। और हाइब्रिड का ये सजेशन हिटल का अच्छा है श्रुति, ये हाइब्रिड का भी हम करेंगे कि जैसे जैसे अभी सपोज बॉम्बे से कोई ज्वाइन कर रहा है तो बॉम्बे से हम उसको वर्चुअल तो काम देंगे ही देंगे, जो करवाएंगे उससे पूरा सिस्टमेटिक। दोस्तों, हमारे पास 1 महीना भी कोई काम करता है ना, ओनली वन, हम इंटर्नशिप खाली 1 महीने के लिए देते हैं और जूनियरशिप 2 महीने के लिए देता है, 6 महीने तक खींच सकते हैं उसको, बराबर है। लेकिन हमारे पास कोई 1 महीना भी काम करता है ना, तो हम 1 महीने में उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, आवर्स इज नॉट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारी लॉ फर्म है, हमको लोगों के केस को जिताना है, लोगों को लिटिगेशन से बाहर निकालना है। हम ये पढ़ाने का इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है, हम आपको गाइडलाइंस देते हैं, हम आपको टास्क देते हैं, वो टास्क को आपको कंप्लीट करना है। और हेटल ने जो आपको हमको सजेशन दिया है कि भाई हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि अगर ये बॉम्बे से कोई अटेंड करता है या कलकत्ता से अटेंड करता है तो वर्चुअली तो टास्क लेगा लेगा, लेकिन हाइब्रिड में वो कभी कभी दिल्ली में 8-10 दिन आके सुप्रीम कोर्ट में भी देख सकता है सब सिस्टम। और हम
उधर के हाई कोर्ट में भी जाने का उसको सिस्टमैटिक हाई कोर्ट का स्टडी कैसा करना, हाई कोर्ट के अलग अलग सेक्शन देखो, ये देखो वो देखो, कोर्ट ये कोर्टेड कोर्ट अटेंड करो, वो कौन से केसेस आपने उस दिन सुने, वो केस के नाम, कॉज लिस्ट, सब सब रिपोर्टिंग करो। और हमारा सर्टिफिकेट, एक तो सर्टिफिकेट जनरल मिलता है, मिस्टर सो एंड सो attended our internship from this date, he is very honest, पंक्चुअल वगैरह वगैरह, एक दो चार लाइन में सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ एक डिटेल सर्टिफिकेट मिलता है, 1 महीने में आपने जो कार्य किया है सब कुछ कार्य नोट डाउन करके हमारे स्टैम्प के साथ आपको मिलता है, ताकि आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे ना तो आप फटक से अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, क्योंकि वो एम्प्लॉयर देखता ही रहेगा यार ये कितना काम किया है इसने, हाँ, ये किया ये किया ये किया ये किया, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ है हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और उसकी इंचार्ज श्रुति है, इंटर्नशिप की और जूनियरशिप की। हम्म। हम जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, आप भी जुड़ जाए, दिल से करो काम, मजा आएगा बस। और फिर समझ में आता है हम कितने अच्छे प्रोफेशन में हैं, समाज का कितना भला कर सकते हैं हम इसमें, क्या लॉ एंड ऑर्डर डेवलप कर सकते हैं देश में, कितना सपोर्ट पुलिस को कर सकते हैं। एक बार मुझे एक पुलिस अधिकारी का फोन आया था, 4-5 साल पहले की घटना है, थोड़ा विषयांतर हो रहा है, माफ करना उसके लिए, लेकिन अभी याद आया तो बता देता हूं। उसका बोला, सोमानी सर मैं आत्महत्या करने का सोच रहा हूं। मैं बोला क्यों भाई? इंस्पेक्टर का फोन था। बोले मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि आई एम थिंकिंग टू डू दिस सुसाइड। मैं बोला मुझे एक काम करो, आपके कमिश्नर का नंबर भेजो, नाम भेजो उसका, मैं करता हूं कुछ आपके लिए। मैंने उसका कमिश्नर का नाम लिया, फोन नंबर लिया, कमिश्नर साहब को फोन किया, उसके पीए ने फोन उठाया। फिर मैं बोला सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी बोल रहा हूँ, बहुत अर्जेंट काम है और कमिश्नर साहब के हित का काम है, बोल दीजिए। अगर बिजी है तो फोन करने के लिए बोलिए, और बिजी नहीं है तो कनेक्ट करने के लिए बोलिए। फटक से आ गए फोन पर। फिर मैंने उनके साथ नम्रता के साथ बात किया, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं जीरो हूं, जो भी चलता है श्री कृष्ण के चेतना से चलता है, और जो भी श्रेष्ठ है तो मेरा सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ है। मुझे जो मान मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के कारण मिलता है, एडवोकेट के सनद के कारण मिलता है। मेरा सम्मान खुद का ही नहीं, ये जो सम्मान है एडवोकेसी का है, तो मैं क्यों गर्व करूं उसके ऊपर। मैं नम्रता के साथ उनके साथ बात किया। अभी क्या बात किया वो सीक्रेट है, थोड़ा सा मैं नहीं बताऊंगा आपको, प्रोफेशनल सीक्रेट है। लेकिन इस ढंग से बात किया उसके साथ कि उसने मेरा नंबर फीड भी करके लिया। वो बोले साहब मैं खुद भी आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो मैं कांटेक्ट करूंगा, और मुझे नाम बताइए। मैं वो बोला कि किस इंस्पेक्टर को तकलीफ हो रही है हमारे मेरे विभाग में, उसका नाम बताइए। मैं बोला नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये आपका काम है ढूंढना। आपको खुद को मालूम है आपने किसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर डाला है, या कौन नेता उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और आपको सब मालूम रहता है क्योंकि आपके थ्रू ही रोटेट होता है सब चीजें। आप यकीन नहीं करेंगे, ये डायलॉग मेरा दोपहर को 12 बजे हुआ था, और शाम को 5 बजे मुझे वो इंस्पेक्टर का जो आत्महत्या करने वाला था उसका फोन आया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्या किया मालूम नहीं, लेकिन सब कुछ मेरा अच्छा हो गया। समझ गए ना ताकत? हमको सरकार के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अधिकारी ही कोऑपरेट करने लगे। और उसके बाद वो कमिश्नर आज भी मेरे कनेक्शन में है, बीच में फोन करते हैं, कभी कभी लीगल गाइडेंस लेते हैं। काफी जजेस हैं हमारे, फैन है हमारे, बुक्स लेते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे 65+ बुक्स हैं सुप्रीम कोर्ट केस लॉस के ऊपर। जो जो जूनियर इंटर जुड़ते हैं उनसे भी हम कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, उनके उनके थ्रू भी कुछ बुक्स का मटेरियल तैयार करते हैं, उनका नाम भी डालते हैं बुक्स के ऊपर, मेरे नाम के साथ साथ उसका भी नाम आता है, असिस्टेड बाय करके। तो उसके सीवी में आ जाता है कि मेरे नाम पे बुक है। वकीली शुरू करने के पहले ही वकीली के बुक्स उसके आ जाता है। एक्सलेंट करो दोस्तों, एक्सलेंट करो बस, योगदान दो, मजा करो, एंजॉय करो, आपका फील्ड एंजॉय करो, फिर वर्कशिप लगने लगता है।
वर्क टाइडियस नहीं लगेगा। रात को 12 बजे भी आप केस लॉस पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। माँ आपके हाथ से केस लॉस का किताब छीन लेगी और कंपल्सरी बोलेगी सो जा अभी, नहीं तो एक झापड़ मारूंगी। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ आवर लॉयरशिप। और ये होता है दोस्तों, आराम से होता है। सॉरी यार, मैंने थोड़ा सा आपको विषयांतर किया। चलो कोई बात नहीं है, जरूरी था। Janvi Singh, sir, I would like to ask whether harassment through social media platform such as WhatsApp within a workplace can be considered a violation under POSH Act or under cyber crime law. Answer is both. पॉश एक्ट में अगर आपके ऑफिस से ही कोई कर रहा है तो ये पॉश एक्ट के अंडर भी आएगा, ये साइबर क्राइम के भी अंदर आएगा, ये आईपीसी के अंदर भी आएगा, और ये आईपीसी बोले तो बीएनएस के भी अंदर आएगा और बीएनएसएस के भी अंदर आएगा। इसलिए जितने भी लॉ लगा सकते हैं, जितने भी सेक्शन लगा सकते हैं, पुलिस को बोलो लगाओ। हम्म? लेकिन पहले अपॉर्चुनिटी दो, अपॉर्चुनिटी दो। हाँ, वो भी कोई भी है, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो एकदम उसको जेल में भेजना भी अच्छा चीज नहीं है। कोई अगर गलत करता है तो एक बार अपॉर्चुनिटी दो, एक बार अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर नहीं सुधारता है तो दूसरी बार डायरेक्ट वार्निंग दे दो और तीसरी बार डायरेक्ट कंप्लेंट कर दो। मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई गेंडे का कातड़ी का रहेगा, लेकिन रहेगा तो उसको सीधा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सीमा राव बोल रही है, ऑल द पॉइंट्स मेंशन वेर वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग विथ अस, वुड लाइक टू वर्क विथ यू इन फ्यूचर अरेंजमेंट। श्योर, श्योर सीमा, श्योर। समीर चौधरी एडवोकेट, समीर चौधरी बोल रहे हैं थैंक्स सर, वुड लाइक टू वर्क विथ यू इन फ्यूचर। श्योर। देन जानवी सिंह बोल रही है, सर आई वुड लाइक, मुझे एक नाम से अंदाजा है हाँ कि भाई ये लेडी हो सकती है, लेकिन कभी कभी है ना पंजाब में मैं देखता हूँ ना, तो सेम नाम लेडीज की भी रहते हैं जेंट्स की, जैसा गुरप्रीत, गुरप्रीत ये नाम लेडीज का भी है जेंट्स का भी है। और प्रीतम ये नाम लेडीज का भी होता है जेंट्स का भी होता है। शीतल जेंट्स का भी है लेडीज का भी है। तो सब टाइम हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेडी है जेंट्स है, बराबर है हाँ। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेडी जेंट्स इक्वल है। इसलिए जानवी आई थिंक लेडी है। सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, हाउ आर फॉल्स कंप्लेंट हैंडल्ड अंडर पॉस एक्ट विदाउट डिस्करेजिंग जेन्यून विक्टिम्स फ्रॉम स्पीकिंग अप। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन जानवी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और इसका जवाब है कानून में ही दिया है, कानून में ही दिया है कि even though she is not able to prove that things, that means she is false, is not considered। आपकी जेन्युनिटी दिखती है तो होगा। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ कि वो लेडी ने अभी तक 3-4 लोगों के ऊपर आरोप किए हैं और एक बार भी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो समझना दैट लेडी इज अ फिशर लेडी। वो फिश पकड़ने के लिए जाला डालती है, आ गया फिश तो आ गया, पैसा ले लो, फिर कंप्लेंट वापस ले लो, और फिर हनी ट्रैप में पटक पकड़ो। तो थोड़ा सा इंसिडेंट देखा जाएगा। अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो माफ डेफिनेटली किया जाएगा, फिर कोई इलीगल एक्शन नहीं होगा। अगर प्रूव नहीं कर पाई तो भी उसके ऊपर कोई फॉल्स कंप्लेंट करने का एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब है पुराना इतिहास अगर ऐसा है कि ये इसने काफी बार ऐसा किया है, या एक बार किया है, 2 बार किया है, तो फिर इसके ऊपर आपको गलत कंप्लेंट करने का, फॉल्स कंप्लेंट करने का एलिगेशन लगेगा। जरूरी नहीं है उसमें आपको इम्प्रिजनमेंट ही होगा, उसमें आपको फाइन भी हो सकता है, या अभी बीएनएस के कुछ सेक्शन के, बीएनएस के कुछ सेक्शन के अनुसार आपको सोशल सर्विस भी दे सकती है कोर्ट। लेकिन पनिशमेंट जरूर मिलेगी अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो। इसलिए
इसलिए जो जेन्यून जो लिखा है जानवी ने, तो बहुत अच्छा लिखा है कि जेन्यून विक्टिम को स्पीकिंग करने के लिए, ओपनली स्पीकिंग अप करने के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए। नहीं तो उसके ऊपर ही अगर खिलाफ वो कंप्लेंट करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे, ये करेंगे, तो ये कोर्ट ने भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई मानहानि का दावा जेंट्स करता है किसी लेडी के खिलाफ, तो सही में वो कंप्लेंट जो है, वो कंप्लेंट प्रोसीड करने के पहले सही में देखना चाहिए इसमें सत्यता कितनी है, देन प्रोसीड। नहीं तो जानवी को जो डर है ऐसा है कि सच्ची विक्टिम लेडी फिर आगे बोल नहीं पाएंगे अगर ऐसे केसेस उसके ऊपर होंगे तो। और इसमें दिया जाता है ना, बंद कमरे में दिया जाता है, तो बंद कमरे में तो हम एविडेंस नहीं दे सकते। तो प्रोपांडेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये जो डॉक्ट्रिन है वो वहां पे क्या होती है, ये होती है। यस, समीर चौधरी बोल रहे हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट आइडिया इज ग्रेट। जानवी के लिए लिखा है, आई एम अ गर्ल सर। मुझे तो अंदाजा था, तो बराबर निकला अंदाजा मेरा। ठीक है, थैंक यू। ऐसा खेलते हंसते खेलते रहना। आई एम दी पर्सन ऑफ योर फैमिली, ऐसा समझ के हमारे वेबिनार, हमारे नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के सब मेंबर हम ऐसे हंसते खेलते ही रहते हैं पूरा। ऐसा एक ग्रुप, एक कभी कभी हम ट्रिप भी निकाले, कभी कभी एक आधा प्रोग्राम करेंगे, कभी कभी एक फिजिकल गेट टुगेदर भी करेंगे। जिनको पॉसिबल है वो आए। और फिर जैसे जैसा काम भारत भर में बढ़े ना, हम जोनल फिजिकल गेट टुगेदर करेंगे, कंट्रीब्यूटरी करेंगे, किसी के ऊपर लोड नहीं करेंगे, किसी का डोनेशन नहीं लेंगे वो गेट टुगेदर के लिए। हम हमारे कंट्रीब्यूट करे करके गेट टुगेदर लेंगे। घर से टिफिन लाके हम गार्डन में इकट्ठा आएंगे, खाएंगे, वहाँ पे गप्पे टप्पे मारेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे। लेकिन किसी के फालतू आदमी से डोनेशन लेके कुछ नहीं करेंगे। हम स्ट्रिक्ट रहेंगे ये बाबत में, क्योंकि हमको समाज सुधारना करना है। तो कह रहे हैं हाँ, पैसा ये वो जो है वो कुछ पब्लिक इलेक्ट्रिकेशन के लिए, इसके लिए चंदा चाहिए तो वो ले लेंगे जरूर। हम्म, ठीक है। श्रुति, काफी देर हुआ ना। हाँ, चलो चलो, एक मिनट ना, मैं आपको ये करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ, देन यू कैन कंक्लूड दिस। यस, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। As we conclude today's highly informative webinar, I would like to thanks a vote of thanks to our esteemed speaker, Jayaprakash Somani, and to all the participants who joined us today. The POS Act is an incredibly important subject for all of us, as it is the foundation of a safe, respectful, and inclusive workplace. Today's session provided us with a comprehensive understanding of the critical law, beautifully covering the three major segments: the Supreme Court role in safeguarding women at the workplace, the legal framework, important sections, procedures, and compliance, the landmark judgment from the Supreme Court and High Court that shape workplace policies today. I also want to thank all the participants for taking the time to attend. Your presence and active engagement show our collective commitment to building a safe work environment for everyone. Thank you once again, and we look forward to seeing you in our future sessions. Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, बाय, बाय ऑल।